Okay, so we have these two examples. First one is vertex plus minus 4 comma 0 and focus plus minus 3 comma 0. And second is focus 0 comma plus minus 3 and eccentricity 1 by 2. So ये वापस यहाँ लिख लेते हैं. B equation is focus 0 comma plus minus 3 eccentricity 1 by 2. So we are going to solve this first question first. So the whole idea is कि we always start with a diagram. डायग्राम से स्टार्ट करोगे काम बहुत आसान हो जाएगा. तो प्लस माइनस 4 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा प्लस माइनस 3 विल बी समथिंग लाइक दिस. हॉरिजॉन्टल वाला पैराबोला, फर्स्ट वाला केस ए ग्रेटर देन बी का केस. थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है. लेट्स ड्रॉ दिस अगेन. ओके, सो नाउ this is 4 and this is 3. Focus and vertex. What we know that कि जो A का वैल्यू है that is 4 और फोकस होता है AE और AE का वैल्यू 3 है. This much you have gathered from this information. बस काम खत्म. Now what we have is E और E का वैल्यू मिला 3/4 और जब E का वैल्यू मिल गया तो we can find the value of B. And what was B? इसेंट्रिसिटी वाले फॉर्मूले को मैंने 3 तरीके से लिखा था. तो वन वॉज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, या फिर आप सीधा ई का फॉर्मूला लगा सकते. एंड दैट गिव्स मी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज 7. खत्म, इक्वेशन आ गया. एंड द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर plus y square by b square equal to 1. Because standard ellipse is mentioned, आपको मेंशन किया हुआ है कि एलिप्स तो स्टैंडर्ड ही है. मतलब x square by a square plus y square by b square equal to 1 and that we need to find. Here also, let's see what we have. एक बार पॉज करो and try to solve this question because all we need is a and b. a और b मिल गया तो we can find the equation. तो pause, I am going to solve. So see, focus is 0 comma plus minus 3, मतलब BE का वैल्यू 3 है. A plus minus AE comma 0 and 0 comma plus minus BE. And eccentricity 1/2 है तो B का वैल्यू 6 आ गया. Now what is the value of A? So the formula is B square equal to A square 1 minus A square. No, actually from the very beginning we know that A less than B वाला केस है और A less than B वाला केस है तो we have to interchange A and B and X and Y जो कि यहाँ नहीं है. Now तो A square will be B square into 1 minus E square and that comes out to be 27. Kadam, and there you have your answer. X square by A square plus y square by b square equal to 1. It will be something like this. As simple as that. बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है. You can easily find the a and b if or always there will be standard form only. Standard form अगर है तो you can easily find these things. Because ultimately a, b and e are two things only. Because दो ही अननोन है. अगर आपको A और B पता है तो you can definitely find E. A और E पता है तो you can find B because these are basically connected to each other. So you will be given two information in any form. हाँ, ध्यान रखने की बात क्या है, ये पता हो जाना चाहिए स्टार्टिंग से A ग्रेटर देन B वाला केस है या B ग्रेटर देन A वाला केस है, उसको एकदम प्रोमिनेंटली लिख लेने का कि दिस इज द केस वी आर टॉकिंग अबाउट. A ग्रेटर देन B का केस है, नथिंग टू वरी अबाउट. A लेस देन B वाला केस है तो कहीं मार्क कर लो क्वेश्चन में कि दिस इज द केस. नाउ एवरी टाइम you keep on looking here so that you do not make any error. So that is ellipse of type 2 जिसमें A less than B का केस है. Okay, now we have these two examples of shifted ellipse. दोनों ही
एक जगह इक्वेशन गिवन है और एक जगह इक्वेशन नहीं गिवन है. In both the cases we are going to find the eccentricity. In both the questions we need to find the eccentricity. You know how I am going to solve. I am going to solve by drawing the ellipse. Now you pause the video and try to solve this two questions and find the E. I am going to do this. So in this case I will say the center is 2, -3. Focus is 3, -3 and vertex is 4, -3. इसका मतलब हुआ सेंटर से फोकस का डिस्टेंस 1 है, फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस भी 1 है. सेंटर टू फोकस इज बेसिकली AE. सेंटर टू फोकस इज AE. स्टैंडर्ड एलिप्स एक जगह ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं. ये सेंटर है, ये फोकस है. वी नो दैट दिस इज AE. शिफ्ट करोगे, रोटेट करोगे, वॉट एवर यू डू, डिस्टेंसेस सेम होंगे, लोकेशन चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा, लेकिन लेंथ चेंज नहीं होगा. लेंथ इज गोइंग टू बी AE. और वर्टेक्स से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो A होता है. सो दैट A equals to 2. खत्म. All done. Because now what we know that E equals to 1/2. So we know B equals to B square होता है A square. सॉरी ये E है. तो B square is equals to A square into 1 minus E square and that is 3. तो B का वैल्यू 3 आ गया. Now this will be something like this which I am going to write the equation. ध्यान देना, अगर सीधा सीधा इक्वेशन होता तो x स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर बाई B स्क्वायर इक्वल टू 1 होता. लेकिन अभी सेंटर कहाँ है? सेंटर इज एट 2, -3. So this x will be actually x minus 2 and y will be actually y plus 3. This is the equation which is not needed in this question. We just have to find E. और E तो हमें पहले ही पता चल चुका है. E का वैल्यू 1/2 है. Just I am showing you how to find the proper equation. So equation will be x minus 2 whole square and y plus 3 whole square. Now whatever you want you can easily find. In this question only E was needed, so that was a very quick method. Here if you see स्टैंडर्ड एलिप्स की बात करेंगे तो अपॉन में 1/2 आएगा और अपॉन में 1/3 आएगा. दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज उधर तो 1 है, इधर भी x के साथ देयर शुड नॉट बी एनीथिंग. वो ऊपर 1 होगा, जो कुछ भी है वो नीचे होगा. सो लेट मी चेंज इट अ बिट. लेट से कि ये 1/3 है, ये 1/2 है. I am going to give you two different flavors actually. वहां पे क्या है, दोनों सेम हो जाता. What you see here is A square is less than B square. मतलब A less than B वाला केस है, मतलब वर्टिकल वाला केस. दूसरे वाले में तो बहुत सिंपल हो जाता, तो इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया. Now we need to find the eccentricity. Eccentricity तो सीधा ही है, √1 minus B square by A square. But in this case it will be A square by B square 1 minus 2/3 का रूट, that is 1/√3. That's it. Done. But what I want you to solve is find the ends of lattice rectum. Ends of lattice rectum हमें find करना है. So I am going to do this. Ends of lattice rectum is plus minus AE कॉमा प्लस माइनस B स्क्वायर बाई A. ये होता है वर्टिकल वाले के लिए. बट इट इज एक्चुअली नाउ द वैल्यू ऑफ x प्लस 3 एंड वैल्यू ऑफ y प्लस 2. सो आई कैन से कि x का वैल्यू होगा -3 एंड दिस, और y का वैल्यू होगा -2 प्लस माइनस b. विदाउट द डायग्राम दिस इज द सिचुएशन. सो आई एम गोइंग टू से -3 प्लस माइनस a स्क्वायर मतलब 1/3 अपॉन b मतलब 1/√2 एंड दिस विल बी
plus minus BE, and B is 1 by root 2 and E is 1 by root 3. That is the ends of lattice rectum. अगर डायग्राम की बात करते तो डायग्राम में इसका सेंटर है -3, -2, -3, -2 सेंटर होता है ना. अब सेंटर से AE आगे पीछे, इन दिस केस AE ऊपर नीचे फोकस होगा. तो AE का वैल्यू इफ आई से, तो AE का वैल्यू है 1/3 बिकॉज A is 1/√3. A is 1/√3, तो AE विल बी 1/3. तो इससे 1/3 यूनिट ऊपर और 1/3 यूनिट नीचे. सॉरी, BE होगा क्योंकि वर्टिकल है तो BE होगा. एंड B is what? 1/√2 into 1/√3 is 1/√6. तो -2 से 1/√6 अप डाउन. देखो -2 से 1/√6 अप डाउन. एंड सिमिलरली -3 से दिस क्वांटिटी लेफ्ट एंड राइट, -3 से दिस क्वांटिटी लेफ्ट एंड राइट. तो यहां पे ये 4 पॉइंट आ जाएंगे और उनको ज्वाइन करके यू विल गेट दिस एलिप्स एंड द एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम. सो द टू आइडियाज, एक डायग्राम का आइडिया, डायग्राम में बहुत छोटा है तो आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं, और यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट. आई ऑलवेज प्रेफर द डायग्राम बिकॉज इन पैराबोला डायग्राम से बहुत हेल्प मिलता है और एलिप्स में आपसे शिफ्टेड नहीं पूछा जाएगा. बट अगर पूछा गया तो भी डायग्राम इज अ फार बेटर ऑप्शन देन फाइंडिंग द दिस वे. So always prefer what? The diagram method. So this was the whole idea about the basic structure of ellipse. And now I am going to solve some more questions. Okay, now I am going to solve one example which is very standard example. You may have heard it. You may know it from the circle also. एक रॉड है of length L. L लेंथ का एक रॉड है जो एक्सिस पे ऐसे स्लाइड कर रहा है, और एक्सिस पे जब स्लाइड करता है तो उस रॉड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता है. दैट कम्स आउट टू बी सर्कल. बट इन दिस केस व्हाट आई एम गोइंग टू से, एक पॉइंट है दैट डिवाइड दिस इन द रेशियो 1:2. यू हैव टू फाइंड लोकस ऑफ दिस पॉइंट. सो द आइडिया इज कि पूरा लेंथ अगर L है एंड आई टेक इट एज थीटा, सो दिस पॉइंट विल बी L cos theta, 0 and this point will be 0, L sin theta. Think of it. अगर ये L है तो ये L cos theta, ये L sin theta. अब इसको we need to divide in the ratio 1:2, तो that will be 0 plus 2L cos theta upon 3, 0 plus L sin theta upon 3. We have to find locus of this point. मतलब it will be h, k. Means I can say 2L cos theta is 3h and L sin theta equal to 3k. Now we have to eliminate this sin and cos, और उसके लिए square and add करना होता है. So let's square and add L cos theta square plus L sin theta square equals to 9h square by 4 plus 9k square. Now what is this? This is actually L square. So I can say 9x square by 4 plus 9y square equal to L square will be actually locus. Will be the locus, which is actually an ellipse. I can say कि चलो ये 9 से डिवाइड कर देते हैं. 9 से डिवाइड करोगे इट लुक्स लाइक दिस, स्टैंडर्ड फॉर्म. अच्छा, इसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा? इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज 3/4, दैट इज √3/2 विल बी द इसेंट्रिसिटी. ना एफ आई से कि वो मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट होता तो इट वुड हैव बीन अ सर्कल. Now this ellipse में whatever you want you can easily find.
एंड दैट इज द होल आइडिया कि कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में कोई रॉड अगर स्लाइड करता है तो उसके मिड पॉइंट का लोकस सर्कल और बाकी कोई भी रेशियो में डिवाइड करोगे, फिक्स रेशियो होना चाहिए, तो उसका लोकस विल बी एन एलिप्स. Okay, so this is your next question. What is this equation? What is this equation? What is this question? Too much work it seems like. लगता है काफी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन आएगा, डेल्टा निकालेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू ab निकालेंगे. बट लेट मी रीअरेंज दिस फॉर यू. 10 कॉमन लिया मैंने, तो x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस y माइनस हाफ का स्क्वायर इज 3x प्लस 4y, और बाहर क्या आया 10 स्क्वायर, तो डिवाइड कर दिया 1/100. रिंग अ बेल? नो? ओके, ये 4 है. लेट मी डिवाइड इट बाय 5 स्क्वायर, तो दिस विल बी एक्चुअली 4. इज दैट ओके? 100 था, 25 अंदर चला गया, 4 बाहर रह गया. Anything? If still not, I am going to rearrange more. X minus 1/2 square, y minus 1/2 square. अगर समझ में आ गया है तो you are going to find the length of lattice rectum in this case. Equals to 1/2 3x plus 4y minus 1/5 का mod. Now something. अब अगर समझ में नहीं आया तो पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू. एंड दिस इज PS इक्वल टू EPM. देखो एक पॉइंट से डिस्टेंस है और उधर एक लाइन से डिस्टेंस है. पॉइंट कौन सा? पॉइंट है 1/2, 1/2, और लाइन क्या है 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो ये फोकस हो गया और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और इसेंट्रिसिटी इज 1/2. That is your focus, directrix and eccentricity. Now what? We need to find eccentricity. तो आंसर आ जाता, but we have to find the length of lattice rectum. Length of lattice rectum कैसे find करेंगे? ध्यान से देखना. Focus, directrix, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? What is the distance between focus and directrix? स्टैंडर्ड एलिप्स की बात करें तो स्टैंडर्ड एलिप्स में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस होता है a/e माइनस AE. टोटल माइनस दिस विल बी दिस. मतलब a/e कॉमन लिया तो 1 माइनस e स्क्वायर. 1 माइनस e स्क्वायर इज व्हाट? इफ यू रिमेंबर, तो दिस इज फॉर्मूला होता है b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर. तो दिस 1 माइनस e स्क्वायर इज बेसिकली b स्क्वायर बाई a. सो दिस इज a/e इंटू b स्क्वायर बाई a स्क्वायर. दिस कैंसिल हो गया, b स्क्वायर बाई ae आया. So now we can find so many things using this idea. So the idea is कि distance between these two, क्योंकि और कुछ फाइंड कर नहीं सकते. हाँ, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज a/e माइनस AE ऑफ स्टैंडर्ड सिनेरियो. रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगा. सो डायरेक्ट्रिक्स चेंज है, फोकस चेंज है, लोकेशन चेंज है, डायरेक्शन चेंज है, बट डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो द आइडिया इज कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस and directrix is a/e minus E, and in this case it will be 3/2 plus 4/2 minus 1/5 का mod, and that is 4/2 is 2, 2 minus 1 is 1, 5/2/5 that is 1/2. और E का वैल्यू 1/2 है, तो 2a minus a/2 is 1/2. 3a/2 is 1/2, तो a comes out to be 1/3. a का वैल्यू 1/3 आ गया, तो we can find the value of b, and that will be a square into 1 minus e square. 1/9 into 3/4 is 1/12. That's it. Now इसका b स्क्वायर है, तो b comes out to be 1/2 √3. Now what do we know?
and what do we need? We need length of latus rectum, और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² बाई a, दैट इज 2/12 अपॉन 1/3, मतलब 1/6 अपॉन 1/3, एंड दैट गिव्स मी 1/2. So the value of length of lattice rectum is 1/2. अब ध्यान से देखो, शिफ्टेड का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा. We did not use any concept of shifted. We just use the concept of relativity. Relativity का concept क्या है? आइंस्टाइन वाला नहीं. This is my concept of relativity, and that is कि relative positions do not change in ellipse or in parabola or in ellipse or in hyperbola if we rotate or shift the conic. तो शिफ्टिंग और रोटेशन से रिलेटिव डिस्टेंसेस में कोई चेंज नहीं आता है. व्हाट वी हैड इज फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में व्हाट वी कैन फाइंड पॉइंट और लाइन में एक तो उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, उसका इमेज फाइंड कर सकते हैं, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला काम आसानी से हमें मिल गया, बिकॉज स्टैंडर्ड डिस्टेंस between the focus and directrix we already knew that it is a by e minus a. अब e पता था तो a तुरंत मिल गया, और a मिल गया, और e पता था तो b फाइंड कर लिया, a और b पता चल गया तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम मिल गया. एंड नाउ वी हैव दिस वन मोर क्वेश्चन. ये एक एलिप्स है, x²/4 प्लस y²/1 इक्वल टू 1, मतलब ये 2 होगा, ये 1 होगा. So a is 2, b is 1, and e is under root 1 minus b²/a², that is 3/4 का रूट 3/2. इसका फोकस कहाँ होगा? फोकस होता है AE, और AE is √3, तो I will say this is √3, 0 and this is minus √3, 0. Now the question is कि ये दो फोकस और कोई भी एक पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ द ट्रायंगल PS1S2, PS1S2 का एरिया हमें फाइंड करना है. अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया फाइंड करना इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, एंड द सिंपल कॉन्सेप्ट इज हाफ बेस इनटू हाइट. तो ये हो जाएगा हाफ बेस इज 2√3 एंड हाइट इज, लेट्स से कि ये पॉइंट अल्फा बीटा है, तो दैट विल बी β². तो √3 β² विल बी एक्चुअली आंसर. बस इतना ही है. अब बीटा का वैल्यू चेंज होता जाएगा, बीटा का वैल्यू चेंज होता जाएगा तो एरिया चेंज होता जाएगा. ना इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया, तो दैट इज योर एरिया. एक सेकेंड, हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट इज एक्चुअली बीटा, so that will be √3 beta. Now maximum area will be the maximum value of √3 beta. और बीटा का मैक्सिमम वैल्यू इफ यू सी दैट विल बी 1, so the maximum area will be √3, otherwise it is simply √3 and y coordinate of that point, whatever it is. So that's it, and that is your basic understanding पे based questions. And now I will finish this video here and we'll proceed further into the ellipse. Thank you.